और अब مسعود نے یہ نئی جات چھیڑ دی تھی۔ دراصل وثق کے دادا کی خواہش ہے کہ اس کی شادی ان کے نواسے حماد سے ہو، تو زاویار اور وثق کے رشتے کو تو آپ لوگ اب ختم ہی سمجھیں، کیونکہ اب وثق کے معاملات کا فیصلہ کرنے کا حق اس کے دادا کا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم عنایا اور زاویار کی شادی طے کر دیں۔ اس طرح ہمیں آپ سے معذرت کا موقع بھی مل جائے گا اور آپس میں جڑے رہنے کی خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ انہوں نے اپنی بات پوری کر کے سب کی طرف دیکھا تو سبھی انہیں حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ غلط وہ بھی نہیں تھے، وہ جلد از جلد اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ صبح علی کی طرف سے ہونے والی ہنگامہ آرائی اور عنایا کی جذباتیت نے انہیں خوف آ رہا تھا۔ زاویار کا ضبط اس لمحے جواب دینے لگا تھا۔ اس کے چہرے کا بدلتا رنگ اس لمحے کسی سے بھی چھپا نہیں رہا تھا۔ مجھے آپ کا فیصلہ منظور نہیں ہے انکل۔ یہ میری زندگی ہے، کوئی تماشا نہیں، اور نہ ہی میں آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ کوئی کٹ پتلی ہوں کہ جو ان کے اشاروں پہ نچاتی رہے۔ اگر وثق کو اپنے فیصلے خود کرنے کا اختیار ہے تو مجھے بھی ہے۔ آئی ایم سوری، میں آپ کی بات نہیں مان سکتا ہوں۔ وہ اپنی بات کہہ کر وہاں رکا نہیں تھا، بلکہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ پیچھے سے عنایا کے لبوں پہ کھیلتی مسکراہٹ مان پڑ گئی تھی۔ سامیہ کو جیسے ہی ان سب حالات کا علم ہوا، وہ اگلے ہی دن دوڑی چلی آئی تھی۔ سامیہ کو جیسے ہی ان سب حالات کا علم ہوا، وہ اگلے ہی دن دوڑی چلی آئی تھی اور اب نہایت ہی پریشانی کے عالم میں بھائی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ زاویار نے بھی ہر بات اس سے کھل کر کہہ دی تھی۔ ویسے بھی اس معاملے میں وہ شروع سے ہی سب کچھ سامیہ سے شیئر کرتا تھا۔ میں نہیں مان سکتی بھائی، وثق ایسی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ ان سب باتوں کے علاوہ کوئی اور بات بھی ہے، ایسی جو ہم نہیں جانتے۔ سامیہ وثق کو بچپن سے جانتی تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ وہ زاویار سے منگنی ہو جانے پہ کتنا خوش تھی۔ پھر کس طرح سے اچانک وہ صرف دادا دادی کی خواہش کو پورا کرنے کی خاطر سب کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، اور وہ بھی بنا بتائے بنا ملے۔ کچھ تو تھا ایسا جو چھپا ہوا تھا، جو اسے رابطہ کرنے سے روکے ہوئے تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ جو بھی بات ہے سب ہمارے سامنے ہے اب، اور پیچھے باقی کیا رہ جاتا ہے سامیہ جو اسے روک رہا ہے؟ وہاں جا کر بھی تو وہ رابطہ کر سکتی تھی، مجھ سے نہ صحیح تم سے کرتی۔ زاویار نے الجھے انداز میں اس سے پوچھا تھا، اور ویسے بھی اس کے گھر والے جھوٹ تو نہیں بول رہے نا سامیہ؟ وہ ہم سب کا سامنا کرنے سے ڈر رہی ہے۔ اس کے دل میں کچھ تو ہے نا ایسا جو اسے اس فرار پہ مجبور کر رہا ہے۔ زاویار نے سامیہ کے چہرے پہ ایک نگاہ ڈالی تھی۔ وہ کسی سوچ میں تھی، بے اعتباری سی تھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، مگر میرا دل کہتا ہے کہ کچھ ہے ایسا ضرور کہ جس نے اسے اس فرار پہ مجبور کیا ہے۔ ورنہ آپ خود سوچیں کہ کوئی اس طرح اچانک سے اپنا گھر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایک دم سے کیسے جا سکتا ہے؟ اور ہر بات ایک طرف، وہ آپ سے بات کہے ملے بنا کیسے جا سکتی ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ وہ ہم سب سے بھاگ رہی ہے۔ کیوں؟ یہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ جتنا میں وثق کو جانتی ہوں بھائی، وہ ایسی نہیں ہے۔ وہ اس طرح سے بیچ راہ میں چھوڑ کر جانے والوں میں سے نہیں۔ سامیہ کا دل پتہ نہیں کیوں مان رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کہیں کچھ غلط ہے ضرور۔ دل تو میرا بھی نہیں مانتا سامی، مگر میں کیا کروں کہ ہر چیز اس کے خلاف جا رہی ہے، اور وہ ہے کہ یوں چھپ کر بیٹھ گئی ہے کہ کوئی پتہ نہیں، کوئی رابطہ نہیں۔ سامیہ کی باتیں اس کے چہرے پہ بھی سوچ کی پرچھائی لے آئیں، اور سچ تو یہ تھا کہ اس کا دل بھی نہیں مانتا تھا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اس طرح پورے دل سے کسی کو چاہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ زاویار ہی صرف ایسا چاہتا تھا، بلکہ اس نے بار بار وثق کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھا تھا۔ یکا یک ہی اس کے سامنے اس کی لمبی پلکوں والی آنکھیں آ گئیں۔ بھائی پلیز، وہ جہاں بھی ہے آپ پلیز کچھ بھی کر کے اس سے ملیں، ایک بار اس سے بات کریں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس طرح سے آپ دونوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی ہوں۔ بھائی پلیز میری خاطر۔ سامیہ نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر محبت سے التجائیہ انداز میں کہا تھا۔ سامیہ ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے ایک بار اس سے ملنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، تاکہ کل کو کوئی پچھتاوا نہ رہے۔ ساویار نے ازبات میں سر ہلاتے ہوئے اس کا سر تھپکا تھا۔ وہ مسکرا دی تھی۔
मगर आप उससे क्यों मिलना चाहते हैं ज़ावियार? अब भला बाकी क्या रह गया है? उस लम्हे ज़ावियार की बात सुनने के बाद अनाया के चेहरे पे बेचैनी वाज़ेह नज़र आ रही थी। वो तो ज़ावियार के बुलाने पे बहुत खुशी-खुशी उससे मिलने आई थी, मगर नहीं जानती थी कि इस बार भी मुलाकात का सबब वसक की ज़ात ही है, जिसे उसने हर मुमकिन तरीके से अपनी ज़िंदगियों से निकालने की कोशिश की थी और उसमें बहुत हद तक कामयाब भी ठहरी थी। मगर अब भी वो उसे ज़ावियार के दिल से निकालने में कामयाब नहीं हो पाई थी। ज़ावियार को उसका एड्रेस चाहिए था, लेकिन अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ था, अनाया। और ये सब इतनी आसानी से ख़त्म हो भी नहीं सकता है, और वो भी सिर्फ़ उसके चाहने से। इज़्तिराब ने जैसे हमावक़्त ज़ावियार के वजूद में बसेरा कर लिया था। उसके वजी चेहरे पे मोहब्बत का इज़्तिराब उस लम्हे पूरी तरह से छाया हुआ था। आप ये भूल रहे हैं कि वो किसी और की खातिर आपको छोड़कर गई है। दादा की ख्वाहिश तो महज़ एक बहाना है, वरना वो तो हम्माद को पहले से जानती थी। बस यही तो उससे पूछना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में कि वो यूँ बिना बताए चली गई? और अगर हम्माद पहले से ही उसकी ज़िंदगी में था तो उसने मोहब्बत का ये फ़रेब मुझे क्यों दिया? बस यही सवाल उससे मिलकर उसकी आँखों में आँखें डालकर करना चाहता हूँ। और अगर जवाब वो ना मिला जो मेरा दिल चाहता है, तो वादा करता हूँ लौट आऊँगा और दोबारा कभी पलट कर उसकी तरफ ना देखूँगा और ना ही उसका नाम लूँगा। ज़ावियार ने पानी का गिलास लबों से लगाकर एक घूँट भरा था। गोया अंदर किसी आग को ठंडा करने की कोशिश की थी, मगर अंदर जलते भांबड़ को ज़रा परखना पड़ा था। मोहब्बत की इतनी तौहीन उसे किसी तौर पर बर्दाश्त न थी। ठीक है, मैं मामा से उसका एड्रेस लेकर आपको दे दूँगी। अनाया ने थके-थके अंदाज में कहते हुए उसके सामने हार मान ली थी। एक तरफ वो अली गले की हड्डी बन गया था और ये ज़ावियार किसी तौर वुसक के गम से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मोहब्बत इतनी आसानी से हार नहीं मानती, ये अनाया को आज समझ आया था। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो अनाया? आखिर क्या कमी लगी तुम्हें मेरी मोहब्बत में, मेरे खुलूस में, जो तुमने इस तरह से इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया? आज बड़े दिनों बाद अनाया ने अली की कॉल पिक की थी। जब से मंगनी खत्म हुई थी, अली ने उसे कोई हजारों की तादाद में कॉल्स और मैसेजेस किए थे, जिनका अनाया ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा था। उसका दिल अब अली से बेजार हो चुका था, मगर आज तंग आकर उसने कॉल रिसीव कर ली थी, तो आगे से अली की मिन्नत भरी आवाज आई थी। और ये सच था कि वो कभी अली की मोहब्बत में दीवानी हुई फिरती थी। अब दिल भर गया था, तो सब बदल गया। आखिर मैं तुम्हें कैसे समझाऊं अली? तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? देखो, अब मेरी शादी तय हो गई है और मैं खुश हूँ। अब मुझे तंग मत करो प्लीज। तुम्हारा और मेरा साथ बस इतना ही था। भूल जाओ सब कुछ। समझो कि हम कभी मिले ही नहीं थे। ऐसे कैसे भूल जाऊं अनाया? आगे से वो चीख ही तो पड़ा था। जब दिल पे चोट पड़ती है ना, तो इंसान ऐसे ही तड़पता है, जैसे वो आज तड़प रहा था। और अनाया मजा ले रही थी। यही सब तो वो चाहती थी कि सारी दुनिया उसके पीछे भागे, उसे सराहे। शादी वाला झूठ भी उसने महज अली से पीछा छुड़ाने को बोला था। कैसे भूल जाऊं अनाया वो सब बातें, वो मुलाकातें, वो कुर्बतें, वो दीवानापन? क्या वो सब मजाक था या महज वक्त गुजारी? हमारी मंगनी हुई थी यार, कोई मजाक थोड़ी था। और इस रिश्ते में सबसे ज्यादा तुम्हारी मर्जी और पसंद शामिल थी। तो अब इस तरह से अचानक कैसे? उसका लहजा बेहद टूटा हुआ था, बिखरा हुआ सा था। वो सच में उस रिश्ते को कायम रखना चाहता था। वो मोहब्बत करता था अनाया से, मगर वो तो किसी और ही हवाओं में थी। उसकी सब मिन्नतें, इल्तिजाएं वो हवा में उड़ा रही थी। उसके खुलूस का, मोहब्बत का तमाशा बना कर रख दिया था अनाया ने। चलो, तुम जो समझो, वक्त गुजारी या मजाक। अब मेरा दिल भर गया है, तो मैं क्या करूं अली? भूल जाओ सब। देखो, जैसे मुझे तुमसे बेहतर पार्टनर मिल गया है ना, ऐसे ही तुम्हें भी कोई ना कोई मिल ही जाएगी। समझो यही हमारा नसीब था। लापरवाही और बेहिसी से कहती अनाया उस लम्हे अली को निहायत खुदगर्ज लगी थी, घमंडी और मगरूर। वो मुसलसल उसके दिल पे पाँव रखे उसे बुरी तरह कुचल रही थी, और उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो क्या कर रही है और उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है।
मुझे सब पता है अनाया चौधरी कि तुम किससे और किस तरह से शादी करने जा रही हो। वही तुम्हारी बहन का मंगेतर ना, जिसकी अच्छी शक्ल और दौलत पे तुम मर मिटी हो। देखना, वो थूकेगा भी नहीं तुम पे। तुम अभी मुझे जानती नहीं हो। देखना, अब मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। इंतज़ार करना उस वक़्त का, जब तुम्हारी बाज़ी तुम पे ही उलट दी जाएगी और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। अली ने आपके लहजे को तमाम तर नरमी और मोहब्बत निकाल के उससे उसके अंदाज में जवाब दिया तो वो सुलग कर रह गई। तुम मुझे धमकी दे रहे हो अली सलमान? तुम्हारी औकात ही क्या है? अनाया जो सोचती है वो ना, वो कर दिखाती है। पहले तुम थे, अब नहीं हो और ना कभी आइंदा होगे। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने जब अपनी बहन को नहीं बख्शा और उसे सबकी ज़िंदगियों से निकाल बाहर किया तो तुम क्या चीज़ हो? अब तो मैं तुम्हें ज़ावियार से शादी करके दिखाऊँगी। अनाया ने निहायत क्रोफर से कहते हुए कॉल ड्रॉप की और अली का नंबर ब्लॉक में डाल दिया। ड्रेसिंग टेबल के आईने में खुद को देखते हुए उसने एक गहरी सांस ली थी और खुद को रिलैक्स किया था। बालों में ब्रश करते हुए वो आगे का लाहे अमल सोचने लगी थी, मगर वो भूल गई थी कि सबसे बड़ा प्लानर वो है जो आसमानों पे बैठा है और किसकी बाजी कब किस पे पलट दी जाएगी ये कोई नहीं जानता सिवाय उसके। उस वादी की खूबसूरती ने वुसक के आसाब पे अच्छा असर डाला था। दादा और दादी उसका बेहद ख्याल रखते थे और वो अब भी अपने पिछले रवैये पे अजहद पशीमान थे। वो हर सूरत उसका अजाला करने की कोशिश करते रहते थे। दादा की तबीयत भी उस पहले से बेहतर थी। वो अब कभी-कभार वुसक के साथ वॉक पर भी चले जाया करते थे और उसे वादी की सैर भी कराया करते थे। और दादी माशाल्लाह इस उम्र में भी खासी चाको चौबंद थी। वो उसके लिए मज़े-मज़े के खाने पकाती थी और उसे खाते देखकर खुश होती थी। उनकी ख्वाहिश थी कि वुसक और हम्माद की शादी हो, लेकिन हम्माद ने उन्हें मना कर दिया था क्योंकि वो किसी और को पसंद करता था। बिलाखिर कुछ पछो-पेश के बाद वो हम्माद की बात मान गए थे। अब वुसक उसके पास उनके साथ थी। उनके इकलौते बेटे की निशानी हमावक्त उनकी निगाहों के सामने थी। यही उनके लिए बहुत था। वैसे भी वो उसे किसी लालच या हमदर्दी में यहाँ नहीं लाए थे, बल्कि उन्होंने उसे पूरे दिल से अपनाया था। वो दोनों हकीकतन उससे शर्मिंदा थे। हम्माद एक अच्छा और हमदर्द तबीयत का लड़का था। वो नाना और नानी का ख्याल रखने की खातिर यहाँ उनके पास रहता था। उसके वालदैन पिंडी में रहते थे। वो यहाँ मकामी बैंक में जॉब करता था और फारिग औकात में उसका महबूब मशगला पेंटिंग बनाना था। वो बहुत उम्दा पेंटिंग करता था। उसने वसक से वादा किया था कभी उसका पोर्ट्रेट ज़रूर बनाएगा और वसक ने भी उसकी बात मान ली थी। वसक यहाँ आकर मुतमईन तो थी मगर खुश नहीं थी। वो सिर्फ दादा-दादी की खातिर खुश नज़र आने की कोशिश करती थी, मगर दर हकीकत वो अभी भी वहीं थी, जहाँ से 3 माह पहले खड़ी थी। उसका दिल और दिमाग अभी भी ज़ावियार में अटका था। वो कहाँ होगा, उसके बारे में क्या सोचता होगा? बस यही सब उसके दिमाग में चलता रहता था। उसका दिल अभी भी ज़ावियार के नाम की माला जपता था, मगर दिमाग में अनाया की बातें गूंजती थीं। उसने यहाँ आकर अपना नंबर भी तब्दील कर दिया था, जिससे वो सिर्फ कभी-कभार मामा और ज़ैन से बात कर लिया करती और बस। कई बार उसका दिल चाहा कि वो ज़ावियार से एक बार, सिर्फ एक बार बात करे और उसे बताए कि वो किन हालात में वहाँ से चली आई थी। फिर ये सोचकर रुक जाती थी कि राब्ता तो वो भी कर सकता था, उसने क्यों ना किया? दिल पे पाँव रखकर वो दिमाग की तावीलें सुना करती थी। जिन दिनों ये सोचें उस पे हावी होती थी, वो मुस्तरिफ सी यहाँ से वहाँ फिरा करती थी। फिर हम्माद उसे समझाया करता था क्योंकि वो वाहिद इंसान था, जिसे वसक ने सब बताया था। दादा और दादी इस बात से लाइल्म थे कि वो किन हालात में यहाँ आई। वो यही समझते थे कि वसक को जब हकीकत का इल्म हुआ तो वो यहाँ आ गई। हम्माद इस मामले में उसका बहुत अच्छा दोस्त और राज़दान साबित हुआ था और उस दिन भी वो उन्हीं सोचों का शिकार थी, तभी हम्माद उसे ज़बरदस्ती झील के किनारे ले आया था और साथ अपना पेंटिंग का सामान भी उठा लाया था। चलो आज माँ बदौलत हम्माद रिजवी साहब आपका शानदार पोर्ट्रेट बनाएंगे, जो कि दुनिया में एक शाहकार होगा। उसने अपना एज़ल वगैरह सेट करते हुए शरारत से कहा था। मगर आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है हम्माद, तुम मुझे ज़बरदस्ती ले आए हो। जवाबन वसक ने इतनी ही बेज़ारी से कहा था। मेरा तो है ना, और तुम मेरी इतनी छोटी सी बात नहीं मान सकती। बहुत दुख की बात है। हम्माद का
ठोस भरा लहजा उस लम्हे वसक के लबों पे मुस्कुराहट ले आया था। और यही वो लम्हा था जो दरख्तों की आड़ में खड़े ज़ावियार की निगाहों की गिरफ्त में आया था। वो जो इतनी दूर सिर्फ उससे मिलने, उससे बात करने आया था, उस लम्हे वापस लौट आया था। बिना उसे सुने, बिना उससे मिले। ये कैसी मोहब्बत थी, जो ज़रा-सा खिलाफ तवक्को देखने और सुनने पे बददिल हो जाती है, लौट जाती है। इस मोहब्बत में तो कोई करीना ही ना था। काश कि वो उससे मिल लेता, सुन लेता तो शायद उन दोनों का ही इज़्तिराब ख़त्म हो जाता। मोहब्बत सुरखरू हो जाती मगर ज़ावियार से अपनी मोहब्बत की ये तौहीन बर्दाश्त नहीं हुई थी। वो गुस्से और जज़्बात में आकर वापस लौट आया था और वसक के यूँ लौट जाने से बेखबर रही थी। दिल यूँ ही तो आज बेकरार न था। चलो आज माँ बदौलत हम्माद रिजवी साहब आपका शानदार पोर्ट्रेट बनाएंगे, जो कि दुनिया में एक शाहकार होगा। उसने अपना एजल वगैरह सेट करते हुए शरारत से कहा था। मगर आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है हम्माद, तुम मुझे जबरदस्ती ले आए हो। जवाबन वसक ने इतनी ही बेजारी से कहा था। मेरा तो है ना, और तुम मेरी इतनी छोटी सी बात नहीं मान सकती हो लड़की, बहुत दुख की बात है। हम्माद का ढोंस भरा लहजा उस लम्हे वसक के लबों पे मुस्कुराहट ले आया था। और यही वो लम्हा था जो दरख्तों की आड़ में खड़े ज़ावियार की निगाहों की गिरफ्त में आया था। वो जो इतनी दूर सिर्फ उससे मिलने, उससे बात करने आया था, उस लम्हे वापस लौट आया था। बिना उसे सुने, बिना उससे मिले। ये कैसी मोहब्बत थी, जो ज़रा-सा खिलाफ तवक्को देखने और सुनने पे बददिल हो जाती थी, लौट जाती थी। इस मोहब्बत में तो कोई करीना ही ना था। काश कि वो उससे मिल लेता, सुन लेता तो शायद उन दोनों का ही इज़्तिराब ख़त्म हो जाता। मोहब्बत सुरखरू हो जाती। मगर ज़ावियार से अपनी मोहब्बत की ये तौहीन बर्दाश्त नहीं हुई थी। वो गुस्से और जज़्बात में आकर वापस लौट आया था और वसक उसके यूँ लौट जाने से बेखबर रही थी। दिल यूँ ही तो आज बेकरार ना था। ज़ावियार ने सब हथियार डालकर अनाया से शादी के लिए हाँ कर दी थी। उस दिन वो वहाँ उस झील किनारे से बहुत दिल बर्दाश्ता होकर लौटा था। वो अपने सब ख्वाब, सारी मोहब्बत उस जंग के सुपुर्द कर आया था और यहाँ आकर उसने सोचा था कि वो एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करेगा। जब वो वहाँ खुश है, तो वो यहाँ जोग क्यों ले? मगर फिर भी दिल अभी भी बेकरार सा था। कभी-कभी अपनी धड़कनें खोने लगता था। आज उसका और अनाया का निकाह होने जा रहा था, जिससे अगर चंद लोग खुश और मुतमईन थे तो बहुत से कश्मकश में मुब्तला भी थे कि ये ठीक होने जा रहा है या नहीं। मगर फिर भी सब करने पे मजबूर थे। ज़ावियार तुम अभी तक तैयार नहीं हुए बेटे? वो अभी तक यूं ही सुस्ती से अपने कमरे में बैठा था। तभी मामा नुकसुक सी तैयार होकर चली आई थी। वो काफी खुश और मुतमईन दिखाई दे रही थी। उनके पीछे सजी सवरी मगर कदरे खामोश सी सामिया भी थी। वो अभी भी दिल से इस निकाह के लिए खुश नहीं थी। जी बस उठ रहा हूँ मामा। वो उठकर बैठते हुए हौले से बोला था। भाई प्लीज, यूं खुद को अजियत देकर कोई काम करने से बेहतर है आप एक बार फिर सोच लें। खुद को थोड़ा वक्त दें, इतनी जल्दी ना करें। सामिया उसकी थकी थकी सी सूरत और वीरान आंखें देखकर खुद को कहने से रोक नहीं पाई थी। सामिया क्या फजूल बोल रही हो? ये कोई वक्त है इस तरह की बातों का? मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा हुआ मेरे बेटे का उस लड़की से जान छूट गई, जिसके ना हंस का पता था ना नस का। और देखो कैसे खामोशी से सब कुछ छोड़कर चली गई। मामा ने बेसाख्ता ही सामिया को टोक दिया था। मामा प्लीज, आप कम से कम इस तरह से वसक के मुतालिक बात ना करें। मसूद अंकल बता चुके हैं कि वो उसके दोस्त की बेटी थी और किन हालात में उन तक पहुंची। और प्लीज मुझे अब इन सारी बातों से कोई सरोकार नहीं है, तो आप लोग अपनी बातें ना करें। वो बेख्तियार ही उन्हें टोक गया था। एक अजीब तकलीफ का एहसास सा जागा था वसक के मुतालिक इस तरह की बात सुनकर। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं बोलती मैं, मगर तुम उठकर तैयार हो जाओ, हम लेट हो रहे हैं। उन्होंने वक्त की नज़ाकत को देखते हुए बात को पलट दिया था। आप चले, मैं आता हूँ। वो उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया था और मामा खमशगीन निगाहों से सामिया को देखती कमरे से बाहर चली गई थी। सामिया कितने ही लम्हे वहां खामोशी से खड़ी रही थी। बारात अपने टाइम पे पहुंची थी। खूबसूरती से सजे मसूद
लॉन की। उस वक़्त शान ही निराली थी। तकरीब का एहतमाम घर के लॉन में ही किया गया था, जिसकी दीदा ज़ेब सजावट उस वक़्त देखने से ताल्लुक़ रखती थी। शानदार इस्तकबाल के बाद बारात को अंदर लाया गया था। आज के दिन के लिए ज़ावियार ने ब्लैक शलवार कमीज़ और मैरून और गोल्डन वास्कट इंतखाब किया था, तो कुछ ऐसा गलत भी ना किया था। उस लम्हे वो बेहद शानदार दिखाई दे रहा था। तो वहीं गोल्डन और मैरून और स्किन कलर कंट्रास्ट में खूबसूरत लिबास में सहेलियों के झुरमुट में हंसती मुस्कुराती अनाया भी किसी से कम नहीं लग रही थी। कुछ पा लेने का गुरूर उसके चेहरे पे साफ नजर आ रहा था। वहीं जावियार की आंखें उस लम्हे कुछ खो देने, कुछ हार देने का एहसास लिए हुए थी। कुछ देर बाद निकाह का शोर उठा था। उन दोनों को एक दूसरे के पहलू में बिठा दिया गया था, क्योंकि निकाह की तकरीब को मखलूत ही रखा गया था। पापा का चेहरा लाडली बेटी को खुश देखकर मुस्कुरा रहा था, जबकि आयशा कदरे खामोश सी थी। सामिया भी खामोशी से एक कोने में खड़ी थी, जैसे किसी अजनबी के निकाह में आई हो। उसने भाई के पहलू में वसक के अलावा कभी किसी का तसव्वुर भी नहीं किया था। शुरू करें? मौलाना ने इजाजत चाही थी। जी बिल्कुल, शुरू करें मौलाना साहब। नेक काम में देर कैसी। जावियार के पापा ने मुस्कुराकर खुश दिली से कहा था, जबकि जावियार का दिल उस वक्त लम्हे चाह रहा था कि वो यहाँ से उठकर भाग जाए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चला जाए, या काश के वक्त के पहिए को उल्टा घुमा सके, पीछे ले जा सके कि जहाँ ऐसी ही एक तकरीब में उसने अपनी मोहब्बत वसक को अपने नाम की अंगूठी बहुत चाह से पहनाई थी। किस कदर दिलकश दिलनशी एहसास था वो। लम्हे भर को उसकी निगाहों में वो मंजर समाया था, जब उसका पहलू उसकी मोहब्बत के वजूद से आबाद था। उसने सर को झटक कर उस मंजर से जान छुड़ाई थी और खुद को उस लम्हे में जिंदा किया था। मगर वो क्या करता कि जैसे वो निगाहों में ही हर मंजर में आ समाई थी। हर तरफ बस वही थी। उसने बामुश्किल खुद को मौलाना साहब की तरफ मुतवज्जो किया था, जो उससे कुछ पूछ रहे थे। तभी उसका फ़ोन पूरे ज़ोर-शोर से बजा था। उसने स्क्रीन को देखा, कोई अनजाना नंबर था। उसने गैर इरादी तौर पे ही फ़ोन ऑन करके कान से लगाया था। दूसरी तरफ कौन था और क्या कह गया था कि ज़ावियार के चेहरे का रंग बेइख्तियार ही बदला था। सब उसे ही देख रहे थे। फिर वक्फे-वक्फे से ज़ावियार की मामा-पापा और सामिया का फ़ोन भी बजा था। ऐसा क्या था कि स्क्रीन को देखते ही उन सबके चेहरे का ही रंग उड़ गया था।